Dear students, if we discuss the electronic configuration of the various elements present in the periodic table, then we can write the electronic configuration like here is the hydrogen. So hydrogen, you know the configuration, and that is 1s1. The next is helium, atomic number 2. We write the configuration 1s2. Then it is lithium. It belongs to the second period, so it has the number of shell 2, and we write the configuration 1s2 2s1. Actually this is 1s1, this is 1s2. It means the 1s2 is over, and after 1s2 what comes? That is the outer configuration 2s1, and overall configuration 1s2 2s1. Here comes 1s2 2s2, and here comes 1s2 2s2 2p1. If outer shell configuration we write, then we can say 2s2 2p1. This is 2s2 2p2. This is 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6, and up to here 1s2 2s2 2p6 over. And what comes next? That is the next element, sodium, belongs to the third period. It means the number of shells are 3, and we write 1s2 2s2 2p6 3s1. Sodium has the outer configuration 3s1. Magnesium has the outer configuration 3s2, and after this is the atomic number 12. Then we write the atomic number 13, aluminium. The outer shell configuration, that is 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6, up to argon 3s2 3p6 are over. And if we write the overall configuration of the argon, then we can say 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, and after 3p6 what comes? Potassium, and outer configuration 4s1, and calcium 4s2. Up to here 4s2 is over, and according to the above principle, after 4s2 what comes? 3d, and this series is called 3d series. And why it is so called 3d series? Because the outer, yani कि last electron that enters into the 3d subshell. And scandium has the atomic number 21, and we write the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 up to here, and then 3d1. So 4s2 3d1, then titanium 4s2 3d2, then 4s2 3d3, and so on, and finally at the last we get zinc, and it has the configuration 4s2 3d10. Up to here 3d10 over. Now we will try to understand the configuration and the atomic sizes of this 3d series, how the atomic size changes on moving from left to right in this 3d series. देखिए, this is the electronic configuration of scandium having the atomic number 21. Then we write the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d1. And if we write shell wise, then we can write the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 and 4s2. This is the first shell, this is the second shell, this is the third shell, and this is the fourth shell. So scandium, the last electron enters into the 3d1, and this 3d1 is not the last shell, it is not the ultimate shell, it is the penultimate shell. Penultimate means outermost से one less. If outermost is 4, then D will be 3. और जो D सबशेल होते हैं in which the electron enters, that is one less than the outermost. If the outermost is 4, then D will be 3. If outermost is 5, D will be 4. If outermost is 6, then D will be 5. Like that.
Now if we write the electronic configuration of the next element, and that is titanium, atomic number 22, what the change will occur in this configuration? All the things will remain same, and change will occur only in the 3D, and the configuration will become 3D2 and 4s2. The outermost shell, that will remain as it is. This is the outermost shell, and this is also the outermost shell, but the last electron enters into 3D. So 3D1, 3D2. In the same way, titanium, it comes vanadium, atomic number 23. Configuration, all the things will remain same, and this 3D, that becomes 3D3, and the outermost shell, that is 4s2. So like that, we write the electronic configuration of 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. And in the same way, the electron enters into the d subshell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means finally at the last, when we write the electronic configuration of zinc having the atomic number 30, then we write the configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 3d10, and then 4s2. So in the zinc, this is the first shell, this is the second shell, this is the third shell, and this is the fourth shell, last shell. Actually, when we move from scandium to zinc in the periodic table, in the left to right, then atomic size decreases, and we will study how the atomic sizes decreases. In the 10th class, in the explanation it is given, when we move from left to right in the periodic table, at every step there is an increasement of 1 proton in the nucleus. And as the 1 proton increases in the nucleus, the attraction of the nucleus on the outermost shell increases, and the outermost shell that comes more and more close to the nucleus. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम के जो न्यूक्लियस है उसमें टोटल प्रोटॉन्स विल बी 21, and titanium, the total proton present in the titanium, that is 22, because the number of protons are always equal to the atomic number. Here atomic number 21, protons are 21. Atomic number 22, protons are 22. Atomic number 23, the protons will be 23. So here the 21 protons are attracting the outermost electrons. Here the 22 protons are attracting the outermost electron. Here the 23 protons are attracting the outermost electron, and resultantly what happens, the number of protons on in the nucleus that increases from scandium to zinc. Finally in the zinc, the number of proton in the nucleus that becomes 30, and the 30 proton that increases the outermost shell. तो धीरे धीरे क्या होता है, जो न्यूक्लियर पुल है, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, दैट इंक्रीजेस ऑन द आउटरमोस्ट शेल, और आउटरमोस्ट शेल is slowly धीरे धीरे it comes more and more close to the nucleus. And finally, we can say the atomic size decreases on moving from left to right in the periodic table. ये हो गया general trend. If anybody asks you what happens about the atomic sizes on moving from left to right in the periodic table, then we can say on moving from left to right in the periodic table, the atomic size decreases. लेकिन अब इसमें थोड़ा सा fine discussion we should have, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेंड है, जो चेंज होता है एटॉमिक साइज, वो क्या एक रेगुलर पैटर्न पर चेंज होता है या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो दैट वी विल सी. एक वन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी आर गोइंग टू हैव. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द वन एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, एंड दिस इज द outermost shell. Suppose it has the atomic number 13, and if the atomic number 13, the number of protons in the nucleus that also 13, it means the 13 positive charges are there, and these 13 positive charges, they attract the outermost shell and outermost electron towards itself. And when we move toward the next element, that is atomic number 14, having the 14 positive charges, ठीक है, तो where the proton enters into the nucleus. Actually whenever there is an increasement of 1 unit of atomic number, जैसे atomic number 13, तो number of protons will be 13 and the number of electrons also will be 13.
and here the atomic number 14, the number of protons 14, and the number of electrons are also 14. Here the outermost electron that enters into the p subshell. तो p subshell का मतलब हो गया जैसे 3s2 और 3p1, एंड 14 में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी 3s2 एंड 3p2 आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन. 14 का जब आप लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p2 लाइक दैट. जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एक साथ दो काम होते हैं. वन प्रोटॉन इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियस एज वेल एज वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन द आउटर मोस्ट शेल और सबशेल. तो ये जो प्रोटॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियस में, ये क्या करते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. These protons which increase in the nucleus, they attract the outermost shell towards itself. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which enters into the s subshell and p subshell, ये इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्जेस को काउंटर बैलेंस करते हैं. काउंटर बैलेंस का मतलब हो गया कि जैसे when we move from 13 to 14, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन इंक्रीजेस, ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है ये क्या करेगा, यहाँ पर 13 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 14 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन क्या करेगा, इस आउटर मोस्ट शेल को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा. वो कहाँ बढ़ेगा, दैट विल इंक्रीज इनटू द पी सबशेल. इसके बाद जब हम आते हैं एटॉमिक नंबर 15 पर, तो this is the nucleus and here the 15 positive charges are there, and now these 15 positive charges that will try to attract the outermost shell towards itself, but the electron also enters and that enters into 3p and the outer configuration becomes 3p3. So what I am going to explain you the very important thing कि when there is a increasement of 1 unit of atomic number, always one proton increases, one electron increases. Proton increases in the nucleus and the electron increases in the outermost shell, or you can say outermost subshell. S और P के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है दैट इज मैक्सिमम. हमने आपको पहले क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द स्क्रीनिंग इफेक्ट और द शील्डिंग इफेक्ट दैट इज मैक्सिमम शोन बाय द S subshell and then P subshell and then D subshell and then F subshell. सबसे ज्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो S का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है, फिर F का होता है. इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम 13 से 14 पे आएंगे एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ये जो P का इलेक्ट्रॉन है, जो P1 से P2 हुआ, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अट्रैक्शन को काउंटर बैलेंस करेगा. जो इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल पे पड़ रहा है उसको ये रोक देगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट. इसका मतलब जो पी के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को स्क्रीन करते हैं, उसको रोकते हैं, जिससे न्यूक्लियस का जो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है एक प्रोटॉन का वो आउटर मोस्ट शेल तक नहीं पहुंच पाता है, और जो एटॉमिक साइज है उसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता है. इसके बाद जब हम आते हैं 14 से 15 पर, तो फिर एक प्रोटॉन बढ़ा. जैसे ही प्रोटॉन बढ़ता है ये आउटर मोस्ट शेल को और खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है हमारा P में, और P के इलेक्ट्रॉन फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं और न्यूक्लियस के इफेक्ट को आउटर मोस्ट पर पहुंचने से रोकते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है उसका अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पर पहुंचने से रुक जाता है. और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ऑफ द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन ऑफ द S एंड P सबशेल, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, जिससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा आउटर मोस्ट शेल पे नहीं पहुंच पाता है. अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि जहां पर एक प्रोटॉन बढ़ेगा लेकिन साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल इंटर इनटू द डी सबशेल. देखिए नाउ वी स्टडी इन द डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे दिस इज द एटॉमिक नंबर 21, तो टोटल 21 प्रोटॉन्स आर देयर इन द स्कैंडियम, और जैसे ही हम आते हैं 21 से 22 पर, वन प्रोटॉन इंक्रीजेज इन द न्यूक्लियस ऑफ द टाइटेनियम, लेकिन साथ ही साथ वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन द डी सबशेल. लेकिन जो डी सबशेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है दैट इज लेस देन S एंड P, और डी का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बहुत कम होता है. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है ये इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसको डी के इलेक्ट्रॉन रोक नहीं पाते हैं. तो रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल पे इंक्रीज हो जाता है. देखिए इधर से एक साइड से न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ा, और अगर इलेक्ट्रॉन S और P में जा रहे हैं तो S और P के इलेक्ट्रॉन उसको काउंटर बैलेंस कर देते हैं, न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट पर नहीं पहुंच पाता है. लेकिन अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता है लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा डी सबशेल में जाता है, तो डी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चार्ज को स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं,
जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस का मैक्सिमम इफेक्ट दैट इंक्रीजेस ऑन द आउटर मोस्ट शेल, और जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो एटॉमिक साइज होता है दैट विल डिक्रीज। ऐसे ही आते हैं 23 पर, वन मोर प्रोटॉन इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियस, और ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है दैट विल आल्सो अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट शेल मोर टुवर्ड इटसेल्फ बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द डी सबशेल, और डी सबशेल का जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल नॉट क्रिएट सो मच स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस की पावर को ये रोक नहीं पाएगा, जिससे मैक्सिमम न्यूक्लियस की पावर आउटर मोस्ट पर पहुंच जाएगी, और ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल है वो थोड़ा सा और अंदर की तरफ आ जाएगा। इसके बाद आते हैं वेरिडियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। वी राइट द कॉन्फिगरेशन एज इट इज and this becomes 3d4 and then 4s2, and I already told you that 3d4 configuration, that is unstable configuration, and due to the extra stability this chromium takes one electron from this 4s, and this 3d4 that becomes 3d5, and the real configuration of the chromium that becomes 3d5 and 4s1, like that. ठीक है, आफ्टर क्रोमियम व्हाट कम्स, मैग्नीज, एंड मैग्नीज हैज द एटॉमिक नंबर 25। नाउ सी हाउ टोटल 5 प्रोटॉन्स हैव बीन इंक्रीज्ड इन द न्यूक्लियस, लेकिन साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एंटरिंग इनटू द डी सबशेल, और मैग्नीज का जब कॉन्फिगरेशन हम लोग लिखेंगे तो दिस कॉन्फिगरेशन अप टू हियर इट विल रिमेन सेम, एंड द आउटर कॉन्फिगरेशन दैट विल बिकम 3d5 एंड 4s2। अब यहां पर 5 प्रोटॉन बढ़ गए, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन बढ़े, लेकिन इलेक्ट्रॉन पड़े हैं हमारे डी में, और ये जो डी के 5 इलेक्ट्रॉन है ये स्क्रीन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल का इफेक्ट, सॉरी न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल पर बढ़ता जाएगा, और जो एटॉमिक साइज है स्कैंडियम का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा, फिर टाइटेनियम का थोड़ा कम, उसके बाद वेनेडियम का और कम, इट मीन द आउटर मोस्ट शेल दैट कम्स मोर एंड मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, फिर क्रोमियम और उसके बाद मैग्नीज। तो मैक्सिमम एटॉमिक साइज है स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम एंड देन मैग्नीज, और उसके बाद में मैग्नीज के बाद नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज आयन, एटॉमिक नंबर 26, एंड देन वी राइट द कॉन्फिगरेशन, एंड एट द लास्ट इट बिकम्स 3d6 4s2। अब यहां पर थोड़ा सा ये देखना है कि जो डी सबशेल है 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that have become 6, 1 2 3 4 5 and 6। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्यूमुलेट होके इनकी जो इंटेंसिटी है, इनकी जो डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब ये न्यूक्लियस के इफेक्ट को स्क्रीन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑल टुगेदर क्या करते हैं, जैसे ही अगला जो नेक्स्ट हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा 26 के बाद 27, एंड 27 होता है हमारा कोबाल्ट का, कोबाल्ट 27, तो अब जो ये प्रोटॉन बढ़ेगा, तो जैसे ये प्रोटॉन बढ़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं D6 और D7 ये इसके एक्स्ट्रा प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज और इसके न्यूक्लियर पुल को स्क्रीन कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं, और जैसे ही रोकेंगे तो एटॉमिक साइज की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इसके बाद की जो वैल्यू है उसके बाद ऐसे आपका आयरन आएगा, आयरन के बाद आपका कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट के बाद निकिल आएगा, और निकिल के बाद कॉपर आएगा। इनके एटॉमिक साइज में ज्यादा फर्क नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि 26, 27 और उसके बाद 28 और 29 ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 26, 27, 28 और 29, ये लगभग जो है यहां तक इनके एटॉमिक साइज कांस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब डी सबशेल में बढ़ जाते हैं तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होने लगता है और वो न्यूक्लियस के पुल को रोक देते हैं, और जब न्यूक्लियस को पुल को रोकेंगे तो एटॉमिक साइज कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हम लास्ट में पहुंचते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर 30, तो एटॉमिक नंबर 30 पे D10 हो जाता है, और D10 में व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द डी सबशेल तो इनके बीच में एक रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, और इस रिपल्शन को नाम देते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। एंड ड्यू टू दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो हमारा डी सबशेल है वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, और एक्सपेंड करने से यहां पर आके एटॉमिक साइज हमारा थोड़ा सा फिर रेस कर जाता है इस तरीके से। तो ये जो ऑर्डर है हमारा वो ये है कि फर्स्ट टिल द मिडिल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड फाइनली इट इंक्रीजेस। और लेफ्ट टू राइट की बात करें तो फर्स्ट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस टिल द मिडिल, then becomes constant and finally at the last at the zinc the atomic size increases। तो ये हमारा एटॉमिक साइज का ऑर्डर होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।